So, strategic management. In strategic management, last class we have done with respect to mapping, right? And under mapping, we did one chart also. One was related to reputation and one was related to range of products and how to present. This is a new design of presentation, and this presentation was given by Mendelov matrix. Okay. So, by this what we see, ABC reputation is high, but range of products are low. XYZ range of products more, but reputation is low. When we come to PQR, they have wide range of products, reputation also not high, okay, medium or low. So, this type of concept was discussed, and we have discussed regarding customers. Okay. Now, regarding strategic management, it is totally business oriented, internal strategic management environment. So, how to compete the competition? What are the ways? Okay, write down. Write down. Over the years, a number of marketing strategies have been evolved. Okay, which are given to handle marketing strategically and fight the competition in the market. In the market. So, fight the competition in the market strategically. Marketing. Okay. Marketing strategy. See, one, social marketing. Social marketing. So, social marketing. So, under social marketing, what happens? Society. Okay. Awareness. Society awareness. Target group. Target group. Okay. Acceptability. Acceptability means what you are saying, they accept. Social ideas. Social ideas. Okay. Publicity. Campaign. Okay. Say example,
cigarette smoking injurious to health. Cigarette smoking is injurious to health. Now, here interesting is one side government saying sell cigarette, pay taxes, other side promoting don't smoke. Number of problems, only loss, no gain. But what we see, then public awareness, these that terms, condition, law, awareness. So here what happens? So what means, what happens is smoking area. No smoking area. Okay. जैसे public places you can't smoke. Public places you can't smoke. Okay. Say railway platform you can't smoke. What I am saying, law is such. Okay. So smoking area, no smoking area, awareness, violation is different thing. Clear? Now suppose smoking in no smoking area, they can impose fine. Our law not so strict, that is different thing. Okay? And law not so strict, what happens? Some technical problem is there, political problem is there, peace and security problem is there. कैसे समझे? मतलब जो लॉ बनाया वो खुद ही वायलेट कर रहा है, क्या करोगे? पुलिस को रखा गया है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो खुद ही स्मोक कर रहा है, क्या करोगे? अब एक्शन कौन लेगा? बहुत ज्यादा होगा। आजकल क्या होता है, फोटो खींच के थोड़ा सोशल मीडिया में डाल दिया, पुलिस यही सब है। तो दैट इज एप्लीकेबिलिटी, पनिशमेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। क्लियर? चलो, तो इन बिजनेस ऑल्सो, not only government, business also, one using this social marketing, product advertisement, publicity, campaign, acceptability. Okay, number of times product they give warnings, so society again. Next, augmented marketing. Augmented marketing. Say additional customer services, additional customer services, product offer, high-tech services,
repair services, upgrade of service. ठीक है. So when this type of marketing strategy is applied, we use the word augmented marketing. ठीक है. Again, एडिशनल, एक्स्ट्रा, और ये सब करके आप मार्केट को अपने फेवर में करना चाहती हो. ठीक है. ओके. नाउअडेज नंबर ऑफ corrections are online, especially technology part. No need to go to center. Whatever problem, they will rectify it from their remote place itself. उसके लिए कोई आदमी आने का जरूरत नहीं है. ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स दे एक्सप्लेन फ्रॉम देयर. खाली बोल देगा माइक ऑन रखो, बस जो बोल रहे हैं करते जाओ, ठीक हो जाएगा. ये सब आ जाता है हाईटेक में. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, this is also one solution. Then one word comes expert service. ठीक है. चलो नेक्स्ट, राइट डाउन डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग. So advertising media, डायरेक्ट टू कस्टमर्स. जैसे पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो पेपर सबके घर में पहुंच गया, तो ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग. ओके. डायरेक्ट रिस्पॉन्स, फोन नंबर वगैरह दे देता है कि कोई है, डायरेक्ट बात करो. ठीक है. कैटलॉग्स, एटसेट्रा. नेक्स्ट, राइट डाउन relationship marketing. Now in this you can say strong relation with customers. Okay, and other stakeholders. Now example, airlines, lounge facility to frequent flyers. ठीक है. जैसे जो कस्टमर लोग रेगुलर है, फ्रीक्वेंट फ्लायर है, ठीक है, तो वो लोग को ऑफर में दे दिया दैट एयरपोर्ट लाउंज फैसिलिटी फ्री. लाउंज फैसिलिटी का मतलब है एयरपोर्ट में
आपका जैसे रेस्टोरेंट होता है ना, तो फ्री फ्री, पैसा नहीं लगेगा। फिर से ऑफर कुछ नहीं होता है, हर चीज में पैसा लगता है। ये एक स्ट्रैटेजी है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। ओके, सो दिस लाउंज फैसिलिटी, number of banks, they have cards with certain terms and conditions। उसमें क्या होता है, लाउंज फैसिलिटी होता है। जैसे आपको बोला 1 रुपया देना होगा, फुल फ्री। What I am saying, relationship, वो टर्म्स कंडीशन में है। आप मेरे साथ बैंकिंग करो, अच्छा से करो, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। यू कैन इन कैश, यू कैन इन कैश। अब क्या होता है, उसमें कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन लगा देता है। लाउंज का मतलब ये नहीं कि डेली जाके आप वहां बैठे रहो, ठीक है, कुछ कुछ लिमिटेशन होता है। क्लियर, अकॉर्डिंगली कोई बात नहीं। तो ये सब है केसेस। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। नाउ इसमें भी आपको मालूम है, इवन रेलवे में ट्रेन टिकट होता है, क्या क्या वैरायटी होता है, जनरल, स्लीपर, 3AC, 2AC, फर्स्ट क्लास AC, ठीक है ना। अब क्या है, उसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास केबिन सब होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो उसका सबसे ज्यादा टिकट कॉस्ट हुआ। तो जो टीटी है वो आपका स्पेशल केयर करेगा, आपसे पूछेगा, ठीक है, वो आपको पास आके पूछेगा। ये सब क्या एक फैसिलिटी है, गॉट इट। माने कोई प्रॉब्लम है, दे विल हियर इमीडिएटली। और सेम थिंग इफ हैपेंस टू जनरल, ठीक है, जनरल में देखेगा खुद घुसने का जगह है कि नहीं। ठीक है, चलो गुड। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, चलिए नेक्स्ट। सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, ओके। सो intangibles, सर्विस मार्केटिंग जो होता है गुडविल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। सो टूल्स एंड टेक्निक्स, सब कुछ है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ओके। टेक्नोलॉजी, so service marketing, what happens, they are saying
you will not face any problem in service. ठीक है. आजकल आप देखोगे बहुत सा सॉफ्टवेयर वगैरह सेल होता है. सॉफ्टवेयर उसके बाद अप टू 1 ईयर 2 ईयर जो भी रहा, आफ्टर सेल सर्विस whatever, so they say they will give you full support, and whenever you call they answer also, because again they have to sell or renew. Again, you know, reference system, if you are satisfied you may refer. ठीक है. पर्सन मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, बिहेवियर, बेस्ट इज पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस लोग के साथ में क्या होता है, जहां भी झमेला है वहां पॉलिटिशियन है. दोनों पार्टी को बोलेगा डोंट वरी आई एम, काम किसी का कुछ नहीं करेगा, दोनों से बेनिफिट उठाएगा, दोनों से वोट लेगा, दोनों को बेवकूफ बनाएगा. दिस इज मार्केटिंग. बिजनेस में भी यही है. आपको बिजनेस करना है, आपको क्या करना है, आपका अगर प्रोडक्ट आप नहीं सेल कर पाए तो आपका बिजनेस हुआ, तब आप क्या करोगे, उसके लिए जो जो करना होगा सब करेंगे. जैसे पॉलिटिशियन लोग बेवकूफ बनाता है, दे डू बिजनेस, देयर पॉलिटिशियन वोट ले लेता है. फिर पैसा लगेगा, लगने दो पैसा, तो क्या है उसमें. आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा नहीं लगेगा. न्यू वेंचर के लिए इतना पैसा खर्च करना टफ है ना. Now, when we talk about this all study apply technique, these are for big business or small business. सबके लिए मोदी दुकान खोलना है, 10 रुपया में लाना है, 12 रुपया में बेचना है, क्या करोगे, छोटा सा. But for everywhere strategy is needed. If you are not in a position, don't compete. क्या समझे. अगर आप compete के लिए रेडी नहीं हो, you don't have resources, you don't have supports, don't compete. नहीं तो क्या होगा, आपका सब पैसा डूब जाएगा. समझ में आ रहा है. अगर आपका रिसोर्सेज नहीं है तो बिजनेस का सपोर्ट सिस्टम क्या बोलता है, डोंट कम्पीट. आपका जो भी है वो भी चला जाएगा. क्लियर. सपोज आपको अपने दुकान में चिप्स बेचना है, तो चिप्स वाला को एडवर्टाइज करने दो ना. आप क्या किया, आप एडवर्टाइज करने लगे चिप्स का. गलत डिसीजन हुआ कि नहीं. हाँ, आया 100 रुपया, खर्चा हो गया 2000. क्लियर. योर बिजनेस, अदर बिजनेस, दोनों में डिफरेंस है. हिंदुस्तान HUL वो सोप का मार्केटिंग करेगा ना. आप क्या किए, आप जाके उसका मार्केटिंग करने लगे. आप माल बेचो ना, एडवर्टाइज उसको करने दो. और आप बोले हम भी हिंदुस्तान लीवर हो गए, क्या होगा, सब डूब गए. सपोज पतंजलि का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो पतंजलि को एडवर्टाइज करने दो ना, आप क्यों करने चले गए. गॉट माई पॉइंट. टेक्निकली समझना है. रिसोर्स नहीं है, आराम से शांति से बैठो. कोई रिसोर्स नहीं है, बिजनेस करने का जरूरत नहीं है, जॉब में घुस जाओ. क्या समझे. रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग रिजल्ट्स.
कुछ ठीक हुआ? मान लो हम लोग स्टडी करते हैं, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चलो पतंजलि भी बड़ा हो गया आजकल, गोदरेज ले लिए, एकदम कोका कोला, बट नाउ यू थिंक एंड अप्लाई इन अ स्मॉल बेस, कुछ नहीं होगा। केस समझे? चलो, ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हुज जॉब? वर्कर और मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आपका टॉप लेवल पहुंच गया तो आप शुरू करो। गॉट माई पॉइंट? नाउ व्हाट इज रिसोर्स? अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू प्रोसीड। ठीक है? जैसे आपको ऐड करना है, आप बोले मेरा तो बहुत छोटा सा दुकान है, तो बोला आप अपना दुकान में ही ऐड करो ना जो करना है। छोटा सा बैनर लगा लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा विजिबिलिटी कर लो, आप अपना दुकान चलाओ ना। आप ऐड का रेंज बढ़ा दिए, ऐड आप करते हो, बेनिफिट दूसरे को मिलता है। पॉसिबल? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? नाउ तो पर्सन मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्टार्स, आजकल स्पोर्ट्समैन लोग को स्टार्स बोला जाता है। ठीक है? फिल्म स्टार्स, क्लियर? तो ये क्या हुआ? पर्सन मार्केटिंग। अब सपोज एड है आपका, एड में आप अमिताभ बच्चन से ऐड करा रहे हो, तो क्या होता है? देयर फैन फॉलोइंग्स आर देयर फैन फॉलोइंग्स आर देयर। तो बाय दिस व्हाट हैपेंस? तो जो फैन होता है वो तो नाम ही है फैन फॉलोइंग, वो जो करेगा वो लोग भी वही करेगा। ठीक है ना? बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना ब्लाइंड सपोर्टर्स। ओके? ब्लाइंड सपोर्टर में क्या होता है? नो क्वेश्चन ऑफ राइट और रॉन्ग, नो क्वेश्चन ऑफ, got it? This type of things happens in religion also. Blind supporters, whatever right or wrong politically. ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका then you have to move to that person. ठीक है? तो पर्सन मार्केटिंग, अगेन राइट डाउन। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, नाउ टारगेट ऑडियंसेस, ठीक है? तो इन दिस व्हाट हैपेंस? यू हैव टू कीप इन माइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बोथ profit and non-profit, organization, both profit and non-profit
ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, दोनों हो सकता है, प्रॉफिट वाला भी, नॉन प्रॉफिट वाला भी। समझ में आया? तो प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग क्या अपना ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग कर रहा है। बहुत जगह होता है ना, आप देखोगे मेडिकल फैसिलिटीज फ्री, मेडिकल फैसिलिटीज, तो बोला इसमें मार्केटिंग करके उसको फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, बिकॉज वो तो फ्री है, बट ऑर्गेनाइजेशन फेमस होता है। ओके, तो बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Now while writing the answer, only word not, something you have to write down. Place marketing. Place marketing. ठीक है? Tourism best example. Business sites. ये सब में क्या होता है? ये सब टूरिज्म इज बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज प्लेस मार्केटिंग। से दार्जिलिंग, कश्मीर, तो दैट प्लेस they are giving importance. That's why word is place marketing. Now फिर से फर्स्ट है प्लेस। जैसे बोला आप कश्मीर में जाओ, वहां पे ये दुकान है, पॉसिबल? तो पर्सन गोइंग फर्स्ट टू द प्लेस, नॉट टू द शॉप। जैसे कोई बोला कलकत्ता आने से इस जगह का खाना बहुत अच्छा है, खाने के लिए नहीं आया वो, कलकत्ता आया फिर अब जाएगा। अगर कलकत्ता नहीं है तो उस जगह पर नहीं जाएगा वो। Got my point? So that is importance. That is importance. Clear? That is place marketing. Again write down. Enlightened marketing. No. Support the long run performance. Marketing philosophy. Five principles. Customer oriented marketing, innovative marketing, value marketing, sense of
mission marketing and societal marketing. So, customer oriented, टारगेट कस्टमर, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है जब आप मार्केटिंग करते हो तो एक होता है कि कस्टमर को फोकस करके सब काम करना है, ठीक है। मीनिंग क्या है, बहुत जगह क्या बोलता है, इंटरमीडियरी को ध्यान में रखो, इंटरमीडियरी का इंटरेस्ट ज्यादा देखो। बहुत जगह है कस्टमर, ऑल बिग कंपनीज, ऑल दे आर कस्टमर ओरिएंटेड। क्या समझे? अब देखो ध्यान से, वेयर इज द मीनिंग। आप कस्टमर को ध्यान रखें तो इंटरमीडियरी का इनकम कम होगा, और इंटरमीडियरी का ध्यान रखोगे तो इंटरमीडिएट को बेनिफिट ज्यादा होगा, कस्टमर को कम होगा। ये क्या है? माइंडसेट। दिस इज, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बोले हमको माल बेचना है, तो कस्टमर से डिमांड आएगा, और एक होता है इंटरमीडियरी डिमांड क्रिएट करेगा क्योंकि उसको ज्यादा कमीशन मिल रहा है। ये माइंडसेट है, कस्टमर ओरिएंटेड एंड इंटरमीडियरी। तो कस्टमर ओरिएंटेड इज ऑलवेज बेटर, समझे? बट कस्टमर ओरिएंटेड आप कैसे करोगे? आपको डायरेक्ट कस्टमर से अप्रोच करना होगा। गॉट इट? कस्टमर अप्रोच, यू नीड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। इंटरमीडियरी में क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट इंटरमीडियरी विल से गिव अस मोर, वी विल ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये सब वर्ड का मीनिंग इंटरप्रिटेशन है। ओके, चल, इनोवेटिव मार्केटिंग, आप नया चीज बनाए, मार्केट विल एक्सेप्ट, पसंद करेगा, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट राइट डाउन, सेल्स ऑफ मिशन मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। आप जब भी कोई काम करते हो तो आपके माइंड में कोई टारगेट होता है, दैट टारगेट इज योर मिशन, योर टारगेट विल बी टू अचीव। तो वो भी मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। नाउ सिंक्रो मार्केटिंग, तो ठीक है, कोई बात, आ जाएगा सब। सिंक्रो मार्केटिंग, alternative ways, synchronize, ठीक है। स्ट्रैटेजी, ओके। differential price. Now, what is synchronize? Synchronize means interconnecting between others. So, you have to make a strategy. Differential price. Say, here one example, movie ticket. Now, weekdays, Saturday and Sunday, high value,
लो वैल्यू। तो आप क्या किए, एक सिस्टम बनाए, सैटरडे संडे ह्यूज डिमांड, you have increased the price, weekdays you have reduced the prices, ठीक है। so by this what happens, you are managing the things। again, differential marketing, डिफरेंशियल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेम मैन्युफैक्चरर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। से लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना दिया हुआ है ना, और भी है डव, पियर्स, ये हो गया जनरल, ये हो गया प्रीमियम। तो ये लोग क्या कर रहा है, दे आर नॉट लूजिंग द कस्टमर्स, ठीक है। प्रीमियम कस्टमर्स गिव देम प्रीमियर कैटेगरी शॉप्स, general and those who are aware of the prices, these that number of things, doing calculations, applying economics, for them other products. Interesting, manufacturer same, buyers are different, whatever they buy product is there, but competition is there. Suppose competition is with Godrej, है ना, so others are also there in the market. Again, concentrated marketing, now few sub markets, niche marketing, niche marketing, बोलो। सर एक बड़ा फॉर्म को सर पूरा मार्केटिंग के ऊपर ही तो सर मतलब शेयर स्प्रेड करना चाहता है, सब मार्केटिंग के ऊपर। नाउ सपोज कोई क्रीम निकाला, ठीक है, कॉस्मेटिक निकाला और बोला 3 महीना यूज करो एकदम काला सब गोरा हो जाएगा, प्राइस 2000 रुपीज, प्राइस 2000 rupees. Now question is, can it be sold to everyone? So will they target in such a way? No. So their target strategy will change. Accordingly production will also change. वो ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। Got my point? वो टारगेट करेगा ओनली सेगमेंट, ओनली बस इसी सेगमेंट को हमको बेचना है। बोलो मार्केटिंग में बेचने का क्या जरूरत है, बड़ा बड़ा मार्केटिंग में फिर से 2000 में बिकेगा,
बड़ा बड़ा मार्केट में सब जगह सबको बेचना है, बिकेगा? बड़ा मार्केट में तो अच्छा चलो, और हम आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल, थोड़ा समझने का चीज है। जैसे कार बेचना है, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, उसका जो मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है, अब मारुति है, टाटा मोटर्स का जो लो सेगमेंट का जो कार सब बेचना है, दोनों सेम है? अप्रोच इज डिफरेंट, एडवर्टाइजमेंट वे इज डिफरेंट। कार बेचना, लग्जरी बेचना, क्या ऑडी बीएमडब्ल्यू क्या बोलता है? वी आर सेलिंग लग्जरी। बाकी लोग बोलता है हम लोग कार बेच रहा है। Got my point? The approach is different. Clear? इसके ऊपर भी एक चीज होता है ब्रांड वैल्यू। So they move in that way only. They move in that way only. ठीक है? बोलना चाहते हैं वो लोग जैसे है, वो लोग के पास डेटा जो है, जैसे एक मास मार्केटिंग और एक क्लास मार्केटिंग। You will see private banks, ICICI, HDFC, Axis, their target is class banking. Nationalized banks, mass banking. दोनों में अंतर है। ऐसा टर्म्स कंडीशन रखिएगा जैसे एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, ये लोग बोलेगा लाउंज फैसिलिटी फ्री। मास क्या बोलेगा? एयरपोर्ट ही नहीं जाना है, लाउंज क्या करेंगे हम? गॉट इट? तो उसको समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। फिर क्या होता है? वर्ड लग्जरी। तो लो इनकम ग्रुप, उसको लग्जरी आप समझाओगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज लग्जरी। ओके? सर लो इनकम सर वो निश मार्केट के ही से बिलोंगिंग है सर। सर वहां पे से बीएमडब्ल्यू Now. का क्या फायदा? फिर से तो उसमें वो माथा नहीं लगाएगा ना। तब बोला कि जो खरीद ही नहीं सकता उसको जितना समझाओ, खरीदेगा? तब तो उससे अच्छा है टारगेट में लो ना। वर्ड उससे अच्छा है टारगेट में लो। वो ठीक है? क्या बोलो? तो यहाँ पे निश नीच मार्केटिंग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है, यस सर। टारगेट है, लिमिटेड है, एकदम क्रीम कस्टमर लोग के लिए है। खरीद सकते हैं उसके लिए। नीच मार्केटिंग, नहीं, मास नहीं चाहिए, पर्टिकुलर, स्पेशल। ओके? छोटा सा सेगमेंट, छोटा सेगमेंट उसमें बड़ा बस। जियोग्राफिकल से इसमें वो नहीं है, इसमें खाली बस मेन लोग को लेना है। ठीक है? इससे क्या होता है? वो लोग का अप्रोच अलग रहता है। बहुत जगह क्या होता है, बिफोर इंटरटेनिंग दे हैव सम बायोडेटा। क्या लेता है? बायोडेटा। बायोडेटा लेने के बाद ही आगे बढ़ेगा कुछ, अदरवाइज नो। ठीक है? अगेन, डी मार्केटिंग। रिड्यूस डिमांड, उल्टा, रिड्यूस डिमांड।
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मार्केटिंग नहीं करना है, मार्केटिंग रिड्यूस कर दो। से सीजनल व्हाट इज देयर, प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ ताजा, रसना, ये सब कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है। मिल्क नहीं, एग्जाम्पल ध्यान से देना है, ठीक है। ये लोग क्या करता है, जब सीजन आएगा ना तो मार्केटिंग बढ़ा देगा, गर्मी में सीजन में ये मार्केटिंग एड उड देना सब शुरू करेगा। जैसे सीजन खत्म सब बंद। समझ गया, उसको मार्केट करना ही नहीं है, डीमार्केटिंग। समझ गए। Number of times they do marketing for particular days only. दुर्गा पूजा में Sunday special, पूजा स्पेशल, ठीक है। So now sir, like cake ad will give me offer. ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है। इंक्रीज डिमांड, रिड्यूस डिमांड, ये क्या है, स्ट्रैटेजिक लेना होगा। अगेन दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अगेन कम टू राइट डाउन चैनल्स। राइट डाउन चैनल्स। So distribution system, products and services, okay, products and services. So approach, strategy, approach and strategy. One is direct to customers, direct to customers, online, offline, okay। अब देखो चैनल्स क्या है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके, डीलर्स, सब डीलर्स, ठीक है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स। देखिए कितना इंटरमीडियरी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मीनिंग समझने का है। सपोज कस्टमर को 100 रुपया में मिला एमआरपी से, रिटेलर बोला मेरे को प्रॉफिट चाहिए 10 रुपया, कितना? होलसेलर बोला हमको चाहिए 5 रुपया,
ठीक है। सब डीलर बोला हमको चाहिए 4 रुपया, डीलर बोला हमको चाहिए 3 रुपया, सब डिस्ट्रीब्यूटर बोला हमको चाहिए 2 रुपया, डिस्ट्रीब्यूटर बोला हमको चाहिए 1 रुपया। इस 100 रुपया में 1 रुपया मेरा। अब देखो कितना हो गया, 10 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना चला गया, 25। इसका मतलब 75 + 25। यह है मैन्युफैक्चरर, ये इंटरमीडियरी और ये है कस्टमर। अब क्या है आपको चैनल, अब इंटरमीडियरी को कम कर दो, पॉसिबल? सबसे कम क्या हो सकता है, सीधा इधर से इधर सब गायब, बोले डायरेक्ट ऑर्डर करो। अब 2 उपाय है, मैन्युफैक्चरर को 25 मिलेगा, दूसरा उपाय है मैन्युफैक्चरर बोला हम 75 में दे देगा कस्टमर को, पॉसिबल? तो ये चैनल एंड अप्रोचेस। अब देखो, इफ यू डू डायरेक्ट, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस्ड। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक बार माल डिस्ट्रीब्यूटर गया, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर गया, फिर डीलर गया, सब डीलर गया, होलसेलर गया, रिटेलर गया, पॉसिबल? सपोज डीलर सब डीलर को एक कर दिया, पॉसिबल? अब क्या होता है, इसके सिस्टम को आप समझो। बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट, ये मेडिसिन मालूम है आपको, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेडिसिन सपोज चेन्नई में बना, दैट मेडिसिन इज अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, दैट मेडिसिन अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया में क्या करेगा, हर स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। आइडिया समझ लो, सब आइडिया। हर स्टेट में नंबर ऑफ सिटीज टाउन्स है, सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। हर सिटी टाउन में एरिया है बहुत सा, डीलर बना दिया, वहां से फिर थोड़ा सब डीलर बनाएगा, फिर सब डीलर से होलसेलर में जाएगा, फिर होलसेलर से लास्ट में शॉप में जाएगा। अब क्या है, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर शॉप कर दो, रिटेल शॉप, डीलर, सब डीलर, होलसेलर को गायब कर दो, पॉसिबल? सो व्हाट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, व्हाट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन? Nowadays marketing is changed due to online. Suppose Amazon, Flipkart, ये लोग का एडवांटेज क्या है? मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट इंडस्ट्री, No intermediate, only their function. Huge cost saving is there. आपको कोई शोरूम नहीं खोलना है, Employees, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, no share of profit, इंटरमीडियरी नहीं है, profit share. कैसे समझे? एंड दे सेल द प्रोडक्ट। एंड दोज हु आर मैन्युफैक्चरर, they are selling direct also through sites also. सब कुछ हो रहा है, बोलो। सर ये जो सर प्रोसेस दिखाएंगे सर ये प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो सर हम लोग का टारगेट मार्केट तो अचीव नहीं भी हो सकता। फिर से दिस इज मार्केट, आप थ्रू सिस्टम बेचो, पूरा चैनल फॉलो करो, अपने लाइन अपना भी वेबसाइट बना लो, डायरेक्ट बेचो,
अमेजन को भी दे दो बेचो, फ्लिपकार्ट को भी दे दो बेचो, कुछ अपना दुकान भी खोल लो. पॉसिबल और नो? दिस इज मार्केटिंग चैनल. आई थिंक गॉट इट. आपका बिजनेस है, आप डिसाइड करो. ओके. प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है फिर? सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन. आप डायरेक्ट बेच रहे हो तो बहुत लोग अपोज करता है. कस्टमर आके मेरे सामने साइट खोला, बोला ये तो 120 रुपया में मिल रहा है, आप 200 रुपया बोलता है. पॉसिबल? उसे के सामने में खोला, बोला देखो 120, यही माल है तो आप 200 रुपया बोल रहा है. देन हाउ वी विल सेल? गॉट इट? प्रैक्टिकल में होता है ये सब. Nowadays total meanings are changing. ठीक है? This is market. How you should be ahead. How you should be ahead. इसका मतलब 120 में मिल रहा है तो वो डायरेक्ट बोलेगा you get less than 120. Give me discount. 120 में देने से लेंगे, नहीं तो हम ऑनलाइन दे देंगे ऑर्डर. ठीक है? अब यहां ध्यान रखना, आप बोला मेरा कॉस्ट है 140, तो बोला वाई 140, आप भी मंगा लो साइट से 120 में. समझ गए? इसको आप कैसे मैनेज करोगे? हाउ यू विल मैनेज? Do they have to make some strategy? ठीक है? इसमें ध्यान रखना है, same market you can't sell at a different price. Ultimately you will be loser. अगर दुकान से माल नहीं बिका और वो डायरेक्ट मंगा लिया, दुकानदार का माल पड़ा रहा. अगर माल नहीं बिकेगा तो दुकानदार माल मंगाएगा नहीं, अल्टीमेट बंद. लॉस किसका हुआ? मैन्युफैक्चरर का. दुकानदार दूसरा का माल बेचने लगेगा, तीसरा का बेचने लगेगा, चौथा का बेचने लगेगा. प्रोडक्ट रीचेस टू कस्टमर, देन ओनली एवरीवन इज सेटिस्फाइड. बीच में जो भी है और कहीं भी माल रुक गया, डिससेटिस्फैक्शन. अल्टीमेटली सामान किसका है? मैन्युफैक्चरर का. अल्टीमेट इफेक्ट विल बी देयर. टाइम बिंग लगेगा. You have sold to intermediary, sold, but finally not sold. So, business will run only if everyone is satisfied, including customer. Including customer. क्या समझ में आया? चलो, again. Say. एग्जाम्पल लेक्मे. प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. रिटेल स्टोर से होता है. आप दुकान में गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? तो रिटेल दुकान में भी मिलता है. ठीक है? देन वेस्ट साइड भी मिलता है, रिलायंस ट्रेंड में भी मिलेगा, अमेजोन में भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा, नायका में भी मिलेगा. मिलेगा? ओन वेबसाइट में भी मिलेगा. तो ये क्या है? उसका स्ट्रेटेजी है. नो रिस्ट्रिक्शन. नो, जैसे आप तो सेल के लिए क्या क्या पूरा मार्केट ओपन कर दिया. रिटेल शॉप ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो, थ्रू बिग ब्रांड्स ऑल्सो, प्लस ओन वेबसाइट ऑल्सो.
Clear? Now, both headphones only online, e-commerce. ठीक है, ओनली ऑनलाइन. तो ये क्या है? इट इज अ स्ट्रेटेजी. ओके, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नो रिटेल शॉप. आपको चाहिए तो ऐसे मंगाना होगा, अदरवाइज नो. क्लियर? But why it will be sold out? So this headphones having some key features which is not available on others. Okay, you have to buy and you have to buy online. You don't have alternative. ठीक है? You can impose more and more conditions provided your position is good. आपका पोजीशन ठीक है तो आप कंडीशन इंपोज कर दो. ठीक है? नाउ कोका कोला. ठीक है? एवरीवेयर. एवरीवेयर का क्या मतलब है? Available in deserts also. Available in, ठीक है? You know Bisleri. इसके साथ भी वही है. ठीक है? So they have marketing strategy. मतलब आपको हर जगह मिलेगा. अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? अब हो सकता है ये आपको ऑनलाइन नहीं मिले, ऑनलाइन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा ऑनलाइन? हर जगह मिल रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं है. हर जगह मिल रहा है, वहां भी तो लाके दिखाता है इतना में मिल रहा है. अब ऐसा सोचो, 20 लीटर का बिस्लरी का बोतल, अब उसको ऑनलाइन ऑर्डर देगा तो कहां से लाएगा, कैसे लाएगा और क्या करेगा? बल्कि रेफ्रिजरेटर दे देगा, बिकॉज वैल्यू इज हाई. ओके, समझ गए? तो उसमें क्या होता है? कॉस्ट होता है, मार्केटिंग होता है. क्लियर? सो इट इज नॉट दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल. ठीक है ना? उसका कारण है प्रैक्टिकली नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, और कुछ नहीं है. पॉसिबल इम्पॉसिबल कुछ नहीं, सब पॉसिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. ठीक है? वाटर बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस. कॉस्ट 1 रुपीज, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज. बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज हाई, लेबर कॉस्ट इज हाई. Okay, again, product channel, service channel. Product channel, service channel. End users. End users. ठीक है?
नाउ आजकल सेम थिंग, कोका कोला, बिस्लरी बॉटल, आप हिल स्टेशन चले जाओ वहां भी मिलेगा, डेजर्ट में चले जाओ वहां भी मिलेगा, और ये सब जो सर्विस चैनल जियो, एयरटेल, ये लोग भी देखोगे दुकान खोल के बैठा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है. सो प्रोडक्ट सर्विस चैनल्स. ओके, so what is geographics? ठीक है. Now one more important area is, write down, role of resources and capabilities building core competency. Building core competency. Now पहले इस वर्ड को समझना है हम लोग को. ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड. Now what is core competency? ये आपका एक स्ट्रेंथ है. ये क्या है? एक स्ट्रेंथ है, कोर competency. So if you want to succeed, you must have core competency, and core competency means that area you are the best. You have solution to each and every problem. So whatever, if you are competent enough to resolve all the situations, so that becomes your core competency. समझ में आ रहा है? वही आपका स्ट्रेंथ हो गया. That becomes strength, and that strength you have to encash. Your core competency you have to encash. So that becomes your core competency. ठीक है? फिर से तो आपका कोई भी कोर कंपिटेंसी है तो क्यों है? क्वेश्चन है. बाकी सबका भी है, सब कुछ है, लास्ट में कंपटीशन होता है. Others also having resources, they are saying why we will not be ahead. ये तो हर इंडस्ट्री का है ना. दिस इज फॉर ऑल. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट, तो अल्ट्राटेक नाउ अहेडिंग अदर्स, बट एसीसी इज देयर, रामको इज देयर, लाफार्ज, सब है, बट अल्ट्राटेक सबसे आगे. अब वाई, अब क्या है कि वो अपने रिसोर्स को बेस्ट मार्केटिंग कर पाया. पॉसिबल. अनदर एग्जांपल, एशियन पेंट्स. एशियन, तो एशियन पेंट्स क्या किया? अपना पूरा रिसोर्स को सब यूज करके पूरा मार्केट में स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, शॉप्स, एक्सक्लूसिव शॉप्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, and simultaneously huge advertisement. Now monopoly is not permanent, but others can't compete. Others, Berger is there, Dulux is there, number of companies are there, but can't compete. But currently
more competitor has come in the market. Okay. So what happens? Resources. One resource is capital fund. One resource is, so here what happens? This Birla Opus behind. So that is not a problem for them. Clear? तो ये क्या होता है? Core competency is also challenged. Core competency is also challenged. But if you can survive, fight back, okay, again you can have your own position. So building core competency. Now, resource and capabilities. जैसे मान लो किसी का कोर कंपिटेंसी है नेटवर्क. कोर कंपिटेंसी क्या है? नेटवर्क. बोला ऑल इंडिया में मेरा 5000 शॉप है, ठीक है, एंड समवन न्यू कमिंग, समवन, तो 5000 शॉप कहां से लाएगा? पॉसिबल? ओके. So core competency is challenged. अभी मार्केट में क्या होता है? क्रेडिट गिविंग फैसिलिटी इज ऑल्सो कोर कंपिटेंसी. आप बाकी का माल लोगे तो पहले पैसा देना होगा, फिर माल देगा. कोई आया बोला नहीं माल रखो बेच के पैसा दो. गॉट माई पॉइंट? मैंने वो 200-300 करोड़ रुपया ब्लॉक कर दिया, माल बेचो पैसा दो. क्लियर? So what happens? This is also one core competency. फिर बहुत जगह है फाइनेंशियल लोग होता है. देयर आर, अब देखो ध्यान से, जीरो EMI प्रोडक्ट्स आर देयर. दुकान में बेचता है ना जीरो EMI. तो आप दुकान में गए, बोले टीवी खरीदना है, कितना दाम है? 40,000. बोला 10 महीना में 4,000 करके दे दो, 40,000 EMI हो गया ना. बोला इंटरेस्ट? बोला कोई इंटरेस्ट नहीं, 40,000 10 महीना में दे दो. और फाइनेंसर्स आर देयर. फाइनेंसर्स आर, समझ गए? आपको 40,000 का EMI कर दिया, 10 EMI, और दुकानदार को 35,000 रुपया दे दिया. सोचो, दुकानदार का माल बिक गया और बीच वाला अपना 5,000 उसका इनकम हो गया. अब कैसे करेगा वो हम लोग का अपना इंटरनल कैलकुलेशन है. गॉट इट? फाइनेंस, स्पॉट फाइनेंस अवेलेबल. क्या बोलता है? आपको बोला आधार कार्ड पैन कार्ड दे दो, माल लेके जाओ, तुरंत काउंटर में बैठा हुआ है. ठीक है? दे हैव देयर ओन सिस्टम. वो लोग ठीक चेक कर लेता है सब. ठीक है? चलिए अगेन, synergized. Okay. Now what is synergized? इसको ध्यान से, सपोज ए कोई काम करेगा 100 रुपया का इनकम होगा, बी कोई काम करेगा 100 रुपया का इनकम होगा, दोनों मिल गया 225 हो गया. अलग में कितना है? 100-100. दोनों मिल गया, एक्स्ट्रा कितना हुआ? इसको बोलते हैं सिनर्जी. ठीक है? इसी का नाम है सिनर्जिक इफेक्ट. कंपटीशन है,
बोला क्या लड़ाई करना, आपस में मिल जाओ। कंपटीशन में दोनों को लॉस हो रहा है, दोनों मिल गया, बढ़ गया। तो ये तो अलायंस डाइवर्सिफिकेशन हुआ। हाँ ठीक है, तो अलायंस तो हो ही गया ना, पहले नहीं था अब हो गया। तो फिर सिनर्जीज क्यों बोला, फिर अलायंस डाइवर्सिफिकेशन बोलो ना। अलग अलग नाम है, सिचुएशन वाइज। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी आप अपना बना लिए पूरा, पॉसिबल। नाउ competency is defined as a combination of skills and techniques rather than individual skill or separate technique। ठीक है। नाउ तो पूरी सब पे से रिसोर्स से कॉम्पिटेंसी आया। आपके पास रिसोर्स है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आएगा कुछ। आपके पास बुक है, 50 बुक है, लेकिन पढ़ते नहीं हो, कुछ काम होगा? तब रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें? ऐसा सोचो, आपके पास लैंड है, यूज करना होगा ना, बोले बेस्ट यूज करोगे कैसे? ह्यूमन पावर चाहिए, तो वो भी चाहिए, तो खाली एक होने से नहीं होगा, फिर उसके बाद आइडिया होना चाहिए। आदमी तो पकड़ के ले आए 100, बोला अब क्या करे, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। गॉट इट? तो उसको कैसे सबको सिंक्रोनाइज करना होगा, इंटरकनेक्ट करना होगा। और स्किल, अल्टीमेटली मोस्ट टॉप पोजीशन इज स्किल एंड आइडिया। बिजनेस सब कोई करता है, सक्सेस तो सब नहीं होता है। फर्स्ट इज इंटरनल देन एक्सटर्नल। आप पहले दुकान खोलोगे, फिर ना पब्लिक एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा देखा जाएगा, राइट? तो फर्स्ट इंटरनल देन एक्सटर्नल। नाउ द कंपनी can consider having a core competency or core competence if the competence is unique and it is difficult for competitors to imitate। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आपका कोर कंपिटेंसी सस्टेन कब करेगा? योर कोर कंपिटेंसी इज यूनिक।
ठीक है, अदर्स ओके कांट इमिटेट, अदर्स कांट इमिटेट। जैसे होता है ना, बोला वो किया हम भी कर लेगा सेम चीज, बट नहीं कर पा रहा है। ओके যেমন স্যামসাং ফোল্ডিং মোবাইলটা হয় দেখো বড় সব ধরনের so your core competency will sustain if it is difficult to imitate। दूसरा, आपका नकल नहीं कर पाएगा, और नकल नहीं कर पाएगा तो आपका कोर कंपिटेंसी चलेगा, बना रहेगा। यस मतलब फिर से जब तक नहीं रहेगा होगा, जिस दिन आ जाएगा खत्म हो जाएगा। सर उस टाइम तक तो सर हम एक मार्केट शेयर ग्रो कर लेंगे ना। करो ना, आपका बिजनेस है, ग्रो करो, बिजनेस रेगुलर अपडेशन अपग्रेडेशन सब कुछ करते रहना होगा। इफ यू डोंट डू यू विल बी आउट। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, दैट इज कोर। माने अगर आपको कोर कंपिटेंसी चाहिए तो आपको रेगुलर करना होगा। आप देखोगे टीवी एड देखे हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 30-40 इयर्स पहले से चल रहा है, आज भी ऐड करना पड़ता है उसको। एशियन पेंट को आज भी ऐड करना पड़ता है। एशियन पेंट क्या कोई नया चीज है? फिर भी ऐड क्यों कर रहा है? उसको रखना पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कि भूल गया। So by that what they are doing? Direct marketing. Customer going and saying I need Asian paint. उसी को बिरला ऑफिस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, जाके बोले हमको बिरला ऑफिस दो। Their ad if you see, it will be in such a way because his fight competition is with direct Asian paint. So Birla Opus is saying we are new, modern, new thing. Avoid old. Got it? मैंने उसको किसको बोल रहा है छोड़ो, एशियन पेंट छोड़ो, बिरला ऑपस में आओ। ठीक है ना? मॉडर्न, नया, बढ़िया। डोंट बी स्टक टू ओल्ड। तो व्हाट हैपेंस? दिस इज स्ट्रैटेजी। एड का भी एक स्ट्रैटेजी होता है, समझ गए? तो बोलो। तो सेम थिंग विल कंटिन्यू अगेन। अपडेट, ठीक है, सेम विल कंटिन्यू।